So, good morning and welcome. We are studying basic terminologies. They are very important through two point of view. One, they are necessary to understand Mendel's laws of inheritance. And second, if you know this basic term, you can solve MCQs better, and hence these basic terms we are studying in detail. ह्या बेसिक टर्म एक्झाम्पल सहित जर विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवल्या तो दरवर्षीच्या जो विद्यार्थ्यांची एक ओरड असते की आम्हाला MCQ सॉल्व्ह करताना अडचण येते, त्यांना जिनोटाईप कन्सिडर नाही करता येत, जिनोटाईपवरून फिनोटाईप कन्सिडर नाही करता येत, ही नाही येणार. बघा, आपल्याला या लेक्चरमध्ये 10व्याच्या पुढच्या बेसिक टर्म पाहायच्या आहेत. पण मग आपल्या ह्या ज्या 9 टर्म्स होत्या त्या एक 5 मिनिटात मी पुन्हा एकदा हरिडली सांगतो. बघा, पहिली जी टर्म होती कॅरेक्टर. पी प्लांटचे किती कॅरेक्टर ग्रेगर जोहान मेंडलने स्टडी केले होते? सर 7. मग हे 7 काय होते? कॅरेक्टर म्हणजे फीचर ऑफ द प्लांट. हाईट ऑफ अ स्टेम, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर. सेकंड, ट्रेट. इट इज a inheritable character and its detectable variants. Suppose we are talking for the character flower position. So how many type of flower position you may notice, observe, or Mendel has seen? Axial position and terminal. So axial and terminal means trait. Third basic term was factor. A particle who is unit of inheritance and expression of a trait. This particle was called factor by Mendel. He said a character has slightly different particles. For one trait, one factor. For other trait, other factor. Suppose height is a character and the two traits are tall and dwarf. So one particle for tall, one particle for dwarf. In an individual, the two particles may be same, called homozygous, or different, called heterozygous. And the same concept we use today. Simply the term gene is applied for Mendelian factor. By Johansson it was introduced in 1909. So a particle which is responsible for inheritance and expression of the trait is called factor. The fourth term is gene. A segment of DNA having information for inheritance and expression of a trait is called gene. Gene is present on chromosome at a particular place called locus. The term gene was coined by Johansson in 1909. Slightly different form of a gene are called allele. So fifth term was allele. Say curly hair, straight hair. After all, it is a shape of hair. Free earlobe, attached earlobe. But after all, it is earlobe. A blood group, B blood group, O blood group, but after all it is
blood group. So slightly different form of a gene are called allele. Individuals are diploid, so they have two allele and they occupy the same place on homologous chromosome. The word allele or allelomorph means for each other was proposed by William Batson in 1906 only. Alleles are formed as a result of mutation. Mendel used to say that only there must be two alleles, but we know that there are cases where alleles are more than two. For example, blood group where the alleles are 3. IA, IB, small I. One more example will come further during deviation from Mendelism, and that is the wing abnormality in Drosophila. Normal wings, strapped wing, notched wing, nicked wing, no wing, so 5 alleles. So Mendel said there are 2 alleles, but today we know that there are certain character or there are certain gene which has more than 2 alleles called multiple allelism. The 6th term is phenotype. External appearance of an individual is said to be phenotype. For example, a plant that has small a, phenotypically it will have a terminal flower. A plant smaller will have wrinkled seed. So expression is called phenotype. Phenotype is determined by genotype and environment. Phenotype is a thing which change as per age, development, and it is also influenced by environment. The 7th term is genotype. Genetic constitution of an individual for certain trait or traits. It's called genotype. For example, certain plant is tall with wrinkled seed. Then the genotype will be either capital T smaller or capital T, smaller. So this is genetic constitution of that phenotype, which is called genotype. Then the 8th one is dominant. Out of the 2 trait or allele, say tall and dwarf, round and wrinkle, capital T, small t, capital R, small r. So out of the 2 allele or trait, the one who can express even in presence of another is said to be dominant. Dominant trait is expressed in homozygous as well as heterozygous condition. Say tall is a dominant trait. So it may have capital T genotype or capital T, small t. Now, what is recessive? The trait or allele which remain unexpressed, suppressed in presence of another allele is said to be a recessive allele or trait. For example, dwarf height, wrinkled seed shape. And remember, a recessive trait is expressed, seen only in a recessive condition. So these are the 9 terms that we have seen. Then previously only, we have also seen homozygous and heterozygous. What is homozygous? An individual who has identical genes or allele. So hence allele is called allelomorphic genes. So another name of allele is allelomorphic gene. So an individual who possesses identical allele is homozygous. And one who possesses dissimilar alleles, it is heterozygous.
Two more differences we have seen between homozygous and heterozygous. The first difference is identical allele, dissimilar allele. Second is produce one type of gamete, produce different type of gamete. Third difference is breeds true. Homozygous individual produce same kind of progeny. So suppose a plant is homozygous tall, it will produce tall only. The plant is homozygous yellow seeded, it will produce yellow seeded only. Heterozygous do not breed true for the trait. Suppose a heterozygous tall plant is selfed, it will produce tall as well as dwarf in 3:1. Segregation. A heterozygous yellow seeded will produce yellow and green in a ratio of 3:1. So these are the differences in homozygous and heterozygous individual. Now we have to see a fresh new terms. Parental generation, F1 generation, F2 generation, who is monohybrid, who is dihybrid, what is monohybrid cross, what is dihybrid cross, homologous chromosome, previously also we have seen. Then genotypic ratio, in all Mendelian crosses the genotypic ratio was 1:2:1. And in dihybrid cross the genotypic ratio was 1:2:1:1:2:1:1. Then phenotypic ratio 3:1 is monohybrid phenotypic ratio, 9:3:3:1 is a dihybrid phenotypic ratio, and we will also see Punnett square. Now to study parental generation, first filial or F1 generation, F2 generation, what is monohybrid, again genotypic and phenotypic ratio and Punnett square. So this monohybrid cross will be helpful. मैंने कहा कि पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो एंड पनेट स्क्वायर, इसे प्रैक्टिकली समझने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारी मदद करेगा. तो चलो, भले ही हमने 7 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए, वापिस एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं, उससे फ़ायदा ही होगा. तो फर्ज करो parental generation, a female parent pure means homozygous. See, both the alleles are same, so homozygous is also called pure. Tall, cross with a male who is again pure. See, the alleles are same, it is dwarf. अब यहाँ देखो, the two pure plants, homozygous plant, one is tall, other is dwarf, used for initial crossing, represent parental generation, and it is symbolized by P or P1. तो सर तुम्ही म्हणता की 2 प्युअर प्लांट ज्यांना आपण सुरुवातीला क्रॉस करतो त्यांची जी पिढी आहे, जनरेशन आहे, तिला म्हणतात पॅरेंटल जनरेशन. तिला सिम्बलाइज करतात या तो पी नाही तर मग P1नी. तो व्हॉट इज पॅरेंटल जनरेशन? द जनरेशन ऑफ 2 प्युअर प्लांट यूज फॉर इनिशियल क्रॉसिंग. नाउ व्हॉट इज F1 जनरेशन? So this is F1 generation. So after crossing pure tall and pure dwarf, the next generation which is obtained is called F1 generation. तो सर F1 जनरेशन माने, तो जब हम एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए और इनको क्रॉस किया, तो फिर हमें समझो 100 बीज मिले और वो 100 बीज की हमने बुआई करी, फिर 2-2.5 महीने उसको पानी दिया. तो जो प्लांट्स बनेंगे उस बीज से, तो उनकी माता कौन है? प्योर टॉल. पिता
प्योर ड्वार्फ। और ये जो बच्चे हमें मिले, इट रिप्रेजेंट F1 जनरेशन। तो डिफाइन F1 जनरेशन, जनरेशन of the plants which are obtained by crossing parental generation represent F1 जनरेशन। म्हणजे असे प्लांट्सची जनरेशन जी आपल्याला प्युअर प्लांट क्रॉस करून मिळते तिला म्हणतात F1 जनरेशन। तो सर त्यांना हाइब्रिड्स का म्हणतात? ये जो F1 जनरेशन है इन्हें हाइब्रिड क्यों कहते? तो हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस, इम्प्योर। मुझे बताओ, जब मेंडल ने टॉल फीमेल को ड्वार्फ मेल के साथ क्रॉस किया तो F1 में सारे प्लांट्स कैसे थे? सिर्फ टॉल। F1 में सारे प्लांट कैसे हैं? सिर्फ टॉल। वो किसके जैसे है? Whether they resemble their male parent? No, they resemble completely female parent. So phenotypically they are like their mother. But are they genotypically like their mother? No. म्हणजे मुलं जे होते ते वडिलांवर गेले का? नाही, ते त्यांच्या आईसारखे आहे दिसायला, तेवढेच टॉल आहे, पण ते जेनेटिकली आईसारखे आहे का? नहीं। तो देखो उनमें दो अलील्स कैसे हैं? डिसिमिलर, मीन्स दे आर हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस को ही कहते इम्प्योर और हाइब्रिड। तो ये एक ट्रेट के लिए हाइब्रिड है। सो इट इज हाइब्रिड फॉर टॉल, हाइब्रिड फॉर टॉल। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो सर हम मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन ऐसे करें कि द प्लांट्स और इंडिविजुअल विच आर हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट, चलेगा। सो टॉल इज अ ट्रेट, heterozygous. An individual who is heterozygous for one trait is called monohybrid, or you may say the F1 of a monohybrid cross is called monohybrid. The F1 of a monohybrid cross is called monohybrid. तो आता बघा, तुम्हाला पॅरेंटल जनरेशन समजलं? हो सर. द जनरेशन ऑफ टू प्युअर प्लांट यूज फॉर इनिशियल क्रॉसिंग. F1 जनरेशन समजली? हो सर. The progeny obtained by crossing the two pure plants or offsprings which are obtained by crossing two pure plant represent F1. अब ये F1 क्या है? So it is first filial generation. तो लैटिन भाषा में filial meaning the son, मतलब इनके ये पुत्र है और इसीलिए नाम पड़ा है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. बट व्हाट इज F2? मेंडल को F2 कैसे मिला था? सर उसने F1 प्लांट जो है ना उनका सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया. तो ओके, F2 जनरेशन इज जनरेशन ऑफ अ प्लांट्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. देखो, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्युसेस F2 जनरेशन. म्हणजे जे दोन प्युअर प्लांट आपण क्रॉस करतो ते पॅरेंटल, त्याची जी प्रोजेनी असते ती F1 आणि F1ला सेल्फ केल्यावर भेटते ते F2. सो F1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॅरेंटल जनरेशन बाय क्रॉसिंग. F2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम F1 जनरेशन बाय सेल्फिंग. अब देखो, पैरेंटल हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, मोनोहायब्रिड भी हो गया. मोनोहायब्रिड म्हणजे कोण? सर जो एका कॅरेक्टरसाठी हेट्रोझायगस असतो. कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल ए स्मॉल ए, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, याला म्हणायचं मोनोहायब्रिड. अब व्हाट इज मोनोहायब्रिड क्रॉस? तो ये हमने पहले ही बताया कि when you study the inheritance of a single character, that is called monohybrid cross, or when a cross is done between two
pure individual to study inheritance of one character. So Mendel was very methodological and systematic. पहिले त्यांनी एका वेळेस एकाच कॅरेक्टरवर लक्ष दिलं की फक्त हाइट, टॉल, ड्वार्फ, उनकी संतान सिर्फ टॉल, और F1 टॉल की संतान टॉल एंड ड्वार्फ, ये हो गया हाइट. अब सीड शेप, फिर सीड कलर. सो व्हेन यू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. What is डायहाइब्रिड? तो चलो पहली बार हम लोग एक डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. सो व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस? तो सर अब इतना तो समझता है कि व्हेन वी स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट अ टाइम, सो इनहेरिटेंस ऑफ two genes or inheritance of two character at a time, it is called a dihybrid cross. तो देखो पहले से देखो, पॅरेंटल जनरेशन. मेंडेल कोणत्या प्लांटला क्रॉस करायचा? फक्त प्युअर. सो फिमेल प्युअर म्हणजे होमोझायगस, मेल अगेन प्युअर म्हणजे होमोझायगस. सो होमोझायगस म्हणजे ॲन इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग आयडेंटिकल अलील्स. आता किती कॅरेक्टर घ्यायचे? 2. तो मेरा एक डायहाइब्रिड क्रॉस आप देखो और एक रफ पेपर पे आप भी एक नया डायहाइब्रिड क्रॉस ट्राई करो. तो सर आप कौन से 2 कैरेक्टर सीखने वाले हैं? तो हाइट एंड सीड शेप. तो हाइट के लिए टॉल, ड्वार्फ. कौन सा कैरेक्टर है? हाइट. अब सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड. अब ये जो 2 प्लांट्स है, हे जे 2 प्युअर प्लांट आहे ज्यांना तुम्ही क्रॉस करताय, त्यांच्यामध्ये किती फरक आहे? आता 2. एक हाइट का फर्क है, ये टॉल है तो ये ड्वार्फ है. और दूसरा फर्क, तो सर इसके सीड्स राउंड है तो इसके सीड्स रिंकल है. म्हणजे 2 फरक झाले. हाइट का भी फरक है और सीड शेप का भी है. तो सच अ क्रॉस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस. नाउ पैरेंटल जनरेशन, फीमेल प्योर टॉल विथ राउंड सीड, मेल अगेन प्युअर ड्वार्फ विथ रिंकल सीड. आत्ता लिहायचे आहे जीनोटाइप. So genotype of parents. So pure tall, capital T, capital T. Pure round, capital R, capital R. Dwarf, small t, small t. Wrinkle, small r, small r. So this is genotypes. आता गमिट्स of F1. So female produces female gamete, male produces male gamete. आता गमिटचे कोणते नियम तुम्हाला मी सांगितले? सर आपने कहा होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑलवेज प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गमिट. ध्यान में रखो परमानेंटली, होमोजाइगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गमिट. मी इथेही सांगितलं होतं तुम्हाला शिकवताना. अब दूसरा सुनो, गमिट नेवर कंटेन 2 एलील.
गमीट में कभी दो अलील नहीं रहते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति रहता डिप्लॉइड पर गमीट रहता हैप्लॉइड। देखो अब कैपिटल टी से कैपिटल टी और कैपिटल आर से कैपिटल आर। सो या दोन अलील पैकी कोणताही एक, या दोन पैकी कोणताही एक। गलती से भी दो नहीं आने चाहिए। गमीट इज इनव्हेरिएबली हॅप्लॉइड। अँड एक प्रोटोकॉल है, काही संकेत असतात। गमीट शुड ऑलवेज बी सर्कल्ड, इसीलिए मैंने सर्कल किया। अब यहां पर स्मॉल टी स्मॉल आर सर्कल। जब आप टॉल राउंड को ड्वार्फ रिंकल के साथ क्रॉस करोगे तो आगे जितने भी मिलेंगे प्लांट्स, म्हणजे या क्रॉसची जी काही असेल प्रोजेनी, फिर 100 प्लांट मिले, 1000 प्लांट मिले, लाख प्लांट मिले, F1 जनरेशन जो रहती ना, उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सिर्फ एक रहता। हमने देखे ऑल F1 वेयर टॉल एंड जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे यहां देखो तो आईकडून काय आलं, मां की तरफ से कैपिटल टी, पिता की तरफ से स्मॉल टी, मां की तरफ से कैपिटल आर और पिता की तरफ से स्मॉल आर। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। मग हा जिनोटाइप आहे की फिनोटाइप आहे? सर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे म्हणजे जिनोटाइप आहे। आता याचा फिनोटाइप लिहा बरं। तो सर लॉ ऑफ डॉमिनन्स, कैपिटल टी म्हणजे टॉल इज डॉमिनंट ऑन स्मॉल टी म्हणजे ड्वार्फ। तो सारे F1 दिखने को होंगे टॉल। अगेन यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस, राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ऑन wrinkled seed shape, so tall round. Now see, all F1 resemble the one parent phenotypically. No plant in F1 is dwarf and wrinkle. Law of dominance. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की F1 मध्ये जेवढे प्लांट भेटले असतील तो ते 100% त्यांच्या आईसारखे आहे, एका पेरेंटसारखे आहे। दुसऱ्या पेरेंटचं रूप F1 मध्ये दिसलंच नाही। पर ये टॉल राउंड दिखने को तो अपनी मां जैसे टॉल राउंड है, पर क्या वो जेनेटिकली अपनी मां जैसे है? नहीं। द पेरेंटल टॉल राउंड वॉज होमोजाइगस, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। and the F1 tall round is, तो सर it is double heterozygous, हेट्रोजाइगस पण डबल। सो हाइट के लिए भी और सीड शेप के लिए भी, और ऐसे व्यक्ति को बोलते डायहाइब्रिड। सो डायहाइब्रिड इज अ इंडिविजुअल who is heterozygous for two trait. Monohybrid is an individual who is heterozygous for single trait. So this is double heterozygous, म्हणजे it is dihybrid. तुम्ही असंही म्हणू शकता the progeny of a dihybrid cross is called dihybrid. अब इसके आगे मुझे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि मुझे फिर डायहाइब्रिड क्रॉस बता के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बतानी है। मेरा यहाँ पे सिर्फ डायहाइब्रिड बताने का उद्देश्य था। आप चाहे तो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते। तो सर मग हे जी F1 आहे उससे F2 कैसे मिलेगी? F2 इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ
F1. मग तुम्ही इथं लिहायला पाहिजे सेल्फिंग ऑफ F1 टू ऑब्टेन F2. मग आता फिमेल कोण आहे? कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल आर स्मॉल आर. मेल कोण आहे? कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल आर स्मॉल आर. मग याचे गमिट्स किती होतील? 4. कॅपिटल टी कॅपिटल आर, कॅपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कॅपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. याला म्हणतात फ्री कॉम्बिनेशन. म्हणजे टॉल राउंड, टॉल रिंकल, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये 4 अगर है मेल गमिट तो यही 4 है फीमेल गमिट. कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. और फिर जो चेकर बोर्ड आएगा उसमें 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे. वो वर्कआउट करो. देखो आपको 9 टाइप ऑफ जीनोटिप टाइप्स मिलते. कैपिटल टी कैपिटल आर एक, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर 2, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 2, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 4, कैपिटल टी स्मॉल आर 1, कैपिटल टी स्मॉल आर 2, स्मॉल टी कैपिटल आर 1, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 2 आणि स्मॉल टी स्मॉल आर 1 असं भेटेल. तो सर इथं आम्हाला 16 कॉम्बिनेशन भेटतील का? हो. और वो 16 कॉम्बिनेशन में जीनोटाइप के प्रकार कितने होंगे? 9. मोनोहाइब्रिड में कितने जीनोटाइप्स मिले? 3. तो यहाँ डायहाइब्रिड में 9. और वहाँ मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप्स कितने मिले? F2 में 2, रेशो 3:1. यहाँ उसके डबल कर दो, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1, 9:3:3:1, 4 फिनोटाइप भेटतील. तो एनीवेज वो आगे देखना है. अब देखो पैरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड हो गया. अब हम बात करेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो की. नाउ just we have did one monohybrid cross. Could you recall from your photo memory that in a F2 generation of a monohybrid cross you got capital T, small t and small t, and their ratio was 1:2:1. Capital T tall, capital T small t again tall because law of dominance. So 3 tall and 1 dwarf. Now this happens in F2 generation. So what is genotypic ratio? The ratio of genotypes, the ratio कोणाचा? जीनोटाइपचा. The ratio of genotype obtained in F2 generation of a monohybrid cross is monohybrid genotypic ratio. In Hindi, ratio of जीनोटाइप. किसका रेशो? जीनोटाइप्स का. कौन से जनरेशन की बात हो रही? F2. कैसे मिला F2? जब किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशो सांगतो. रेशो ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ F2 जनरेशन obtained by monohybrid cross is monohybrid genotypic ratio. And in all Mendelian crosses, मेंडलने किती मोनोहायब्रिड क्रॉस केले? 7. त्या प्रत्येकात जीनोटिपिक रेशो होता 1:2:1. सर ये 1 कौन है?
अब आप बताओ। तो सर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये 2 कौन है? हेट्रोजाइगस पण डोमिनेंट। और ये 1 कौन है? होमोजाइगस रेसेसिव। 25%, 1/4 होमोजाइगस डोमिनेंट, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड 25% होमोजाइगस रेसेसिव। अब फिनोटिपिक रेशो, सो टॉल आणि ड्वार्फ काय आहे? जिनोटाइप आहे की फिनोटाइप आहे? सर टॉल अँड ड्वार्फ हे दिसतं म्हणजे फिनोटाइप आहे. आणि 3:1 काय आहे? रेशो. मग 3:1 कशाचा रेशो आहे? फिनोटाइपचा. कोणत्या जनरेशनच्या? F2 जनरेशनच्या प्लांटचा. सो सुनो, डेफिनेशन ऑफ फिनोटिपिक रेशो. रेशो ऑफ फिनोटाइप of members of F2 generation obtained by monohybrid cross is monohybrid phenotypic ratio. In all Mendelian crosses, monohybrid crosses, the phenotypic ratio was consistent 3:1. Genotypic ratio was consistent 1:2:1. तो सर हातोहात डायहायब्रिडचे जिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सांगून द्या. तो हम लोग सिर्फ लिखते हैं. यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:4:1:1:2:1:1. This is dihybrid genotypic ratio. The ratio of genotypes of members of F2 generation of a dihybrid cross. And sir, phenotypic ratio 9:3:3:1. So this is a ratio of phenotypes of members of F2 generation of a dihybrid cross. तो हम लोग विस्तार से क्यों नहीं ले रहे? हमारा सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीखना ये उद्देश्य है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जब हम डायहाइब्रिड क्रॉसेस देखेंगे तब तीसरा लॉ. अब पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, पनेट स्क्वायर भी देखा कि रिग्नाल्ड सी पनेट was a British geneticist who has given a checkerboard called Punnett square to work out the possibility. तो डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये F1 चे गमिट्स किती होते? 4. सो 4 फिमेल गमिट, 4 मेल गमिट, 16 कॉम्बिनेशन्स. सो जेनेटिसिस्ट, प्लांट ब्रीडर्स यूज द Punnett square to work out the F2 progeny. Possibility of getting F2 progeny. होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो कल ही मैंने बताया आपको कि सर मार्फोलॉजिकली सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम. तो ये हमारी माता से हमें मिला तिसरा क्रोमोसोम, आपल्या आईकडून आलेला तिसरा, आणि हा वडिलांकडून आलेला तिसरा. ते दिसायला आहे सेम, मार्फोलॉजिकली सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम. दे आर जेनेटिकली आल्सो सेम. आईचे फ्री इयर लोब आहे, वडिलांचे अटॅच आहे. आईचे केस कर्ली आहे, वडिलांचे स्ट्रेट आहे. तो सर फेअर फ्री इयरलोब, अटॅच इयरलोब आहे तर इयरलोब. अरे फ्री असो की अटॅच है तो इयरलोब, कर्ली हो या स्ट्रेट है तो हेयर्स. तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम विच आर जेनेटिकली आल्सो सेम. One inherited from one parent, other inherited from other parent. This pair is called a pair of homologous chromosome. मग आपल्या प्रत्येक सेलमध्ये होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या किती पेयर आहे?
तो सर पहिला पहिला, दुसरा दुसरा, तिसरा तिसरा, चौथा चौथा असं करत करत 20वा 20वा, 21वा 21वा, 22वा 22वा, 23वा 23वा, माने 23 पेयर, माने 46 क्रोमोजोम. तो सर होमोलॉगस क्रोमोजोम मार्फोलॉजिकली सेम है, हाँ. जेनेटिकली भी सेम है, हाँ. तो फर्क क्या है? सोचो. फर्क है अलील्स का. कर्ली स्ट्रेट, फ्री अटैच. और सर अगर ये भी फर्क नहीं है तो इंडिव्हिज्युअल इज होमोझायगस. समजा तुमच्या आईसाहेबांचे इयरलोब फ्री आहे आणि समजा वडिलांचे सुद्धा फ्री आहे. आईसाहेबांचे केस कर्ली आहे आणि वडिलांचे सुद्धा कर्ली आहे. तो यू पीपल आर होमोझाइगस. अब हमने ये जो एक बेसिक टर्म्स देखी, इसके एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान में रखें तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बहुत फायदा होगा. तो अब मेरा अगला जो वीडियो आएगा उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इट्स डेविएशंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन which is universally true, accepted, no exception, no deviation. ये 2 लॉस पर हम लोगों की बात होगी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.